Hello friends, how are you? Today we'll learn about different types of communication. There are mainly two types of communication, internal communication and external communication. So what is internal communication? Let's see. Communication that takes place within the organization is known as internal communication. So who are the players? Internal communication takes place among the employees of the organization. They may be of a particular office or branch. They may be of various plants and facilities. Internal communication can happen between individuals and individuals, or between an individual and a group, or between two groups, or between different departments. Internal communication can also occur between corporate office and branch offices. Now the question is, why is there a need of internal communication in an organization? So here is the reason. See, what is an organization? An organization is a group of people who work together to achieve a common objective or goal. In order to achieve this goal, they need to play a certain role. And it's not that only one person is responsible for the progress of the organization. All the employees together help the organization achieve its goal. So necessarily all the employees will have to work together by cooperating each other, by collaborating with others and live like a family. So when is it possible? It's only possible when they have got good relations with each other. And what is the base of a good relation? It's nothing but communication. So only if employees communicate with each other and share their ideas, thoughts, feelings, emotions and information with each other, they'll be able to work as a team and help the company achieve its goal. Now the second type of communication is called external communication. So what is an external communication? External communication is a communication that takes place with people outside the organization. मतलब कंपनी के बाहर के जो लोग होते हैं उनके साथ जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. नाउ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बाहर के लोग माने कौन? So they include customers or clients, your suppliers, your dealers or distributors, media, government agency, and so on. So now the question is, why do we need to have external communication? See, we need to understand one thing, that only if a company has got a positive impression in the market, people will think and believe about that company. If a company can project its professional positive impression in the marketplace, then and then only it will get enough number of customers. So in order to sell our products or services, it is very much essential that we have a positive image in the eyes of the society. And to make it happen, a company needs to constantly communicate with all the people outside the organization. Company may do it in a number of ways, through advertising and publicity, through various campaigns, through emails, phone calls, meetings, and so on.
कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं, एक जिसे हम कहेंगे इंटरनल कम्युनिकेशन और दूसरा जिसे हम कहेंगे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन माने जो कंपनी के अंदर होता है वो कम्युनिकेशन। अब कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन किसका होगा? तो कंपनी में जितने भी एम्प्लॉइज है उनका एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन होता है काम से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कम्युनिकेशन। अब जरूरी है कि एक डिपार्टमेंट के दो बंदों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वही इंटरनल कम्युनिकेशन है। कोई एक एम्प्लॉई और एक पूरे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे भी हम इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। दो अलग अलग ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज के बीच में कम्युनिकेशन होता है उसे भी हम इंटरनल कम्युनिकेशन में गिनते हैं। दो अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच में, मतलब एम्प्लॉइज के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है उसे हम इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये रहेगा कि इंटरनल कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? तो कोई भी कंपनी का एग्जांपल हम लेते हैं, छोटी हो या बड़ी हो या मीडियम साइज की हो, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, किसी भी कंपनी अल्टीमेटली तो लोगों से बनी है और ये लोगों को कंपनी ने अलग अलग जिम्मेदारियां दी है जो कि उनको रेगुलर बेस पे निभानी होती है। अब एज अ पार्ट ऑफ देयर जॉब दे आर सपोज टू एक्सचेंज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर। अपना काम सही तौर पे करने के लिए, समय पर करने के लिए इन कर्मचारियों को दूसरे कर्मचारियों के साथ रेगुलर बेस पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना होता है, क्योंकि मुझे अपना काम खत्म करने के लिए अच्छी तरह से जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमेशा मेरे पास नहीं होती। हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन किसी और डिपार्टमेंट के किसी और बंदे के पास हो, तो मुझे उससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सेम वे किसी और बंदे को कोई इंफॉर्मेशन का जरूरत है अपना काम सही तरीके से करने के लिए, पर उसके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है और वो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, तो वो बंदे को मेरे से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। एक ऑफिस में जो काम होता है उनको जिन इंफॉर्मेशन का जरूरत है डिसीजन मेकिंग के लिए, हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन किसी और ब्रांच ऑफिस में हो, तो उन दोनों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मतलब हर एक बंदे को अपना काम सही तरीके से समय पर खत्म करने के लिए कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये भी है ना कि रिलेशनशिप, इतने सारे लोग जब इकट्ठा होकर काम करते हो तो वो तभी काम कर सकते हैं जब वो एक दूसरे के बारे में अच्छी सोच रखते हो, और अच्छी सोच तभी आती है जब हमारे एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन हो। और क्या हम ऊपर पट्टी लगाकर रिलेशन डेवलप करते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे रिलेशन तभी बनते जब हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। सो एक दूसरे से मिलजुल कर काम करने के लिए, समय पर अपना काम अच्छे तरीके से खत्म करने के लिए हमें कम्युनिकेशन करना पड़ता है। अब ये तो हो गया कंपनी के अंदर होने वाला कम्युनिकेशन माने के इंटरनल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन माने कंपनी के बाहर जो लोग हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी से जुड़े हैं उनके साथ कम्युनिकेशन। अब कंपनी के बाहर के लोगों में किनका समावेश होता है? तो इनके अंदर हम कस्टमर्स या क्लाइंट्स ले सकते हैं। हम काफी सारी लोगों से काफी सारी चीजें लेते हैं तो वो हमारे सप्लायर्स हो गए। जैसे रॉ मटेरियल आता है, कोई ऑक्सिलरी आइटम्स हम परचेस करते हैं, कुछ लोगों से हम सर्विस लेते हैं, हमारे फाइनेंशियर्स भी होते हैं जिनसे हम पैसा लेके अपनी कंपनी का काम चलाते हैं, तो ये सारे हमारे सप्लायर्स हो गए। अब जो बंदे हमारी प्रोडक्ट को या हमारी सर्विस को मार्केट में बेचने का काम करते हैं, हमारे डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स या वेंडर्स, उनके साथ भी रेगुलर बेस पे कम्युनिकेशन करना होता है। और इनके अलावा मीडिया के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है, क्योंकि अगर उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है तो वो अपने अपने मीडिया में हमारा एक पॉजिटिव पब्लिसिटी करेंगे। गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी हमें संबंध बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि काफी समय पर हमें उनको अप्रोच करना होता है। तो ये सारी चीजों के लिए हमारे उनके साथ अच्छे संबंध होना जरूरी है। और जैसे अभी मैंने बताया कि अच्छे संबंध तभी बनते हैं जब हम लोगों के साथ रेगुलर कम्युनिकेट करते हैं। दूसरी चीज ये है ना कि जैसे सोसाइटी है, समाज के ऊपर अगर हमारे बिजनेस की एक अच्छी इंप्रेशन बनी है, उनके जहन में ये है कि भाई ये कंपनी अच्छी कंपनी है,
तो हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं या हम जो भी सर्विस देते हैं उसके प्रति भी उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। और जब किसी कस्टमर का किसी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तभी वो प्रोडक्ट या सर्विस बिकेगी। तो इन सभी कारणों की वजह से जितने भी लोग हमारे कंपनी के बाहर है पर जो हमारी कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए उन सभी के साथ हमें रिलेशन बनाना है। और रिलेशन बनाने के लिए हमें रेगुलर बेस पर उनके साथ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करना होगा। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बाद चलिए अभी हम जाते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स का मतलब होता है साधन, इंस्ट्रूमेंट या फिर टूल। अब यहां पे हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन बेसिकली दो तरह के होते हैं, कंसीडरिंग देयर मीन्स और मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहला और सबसे कॉमन कम्युनिकेशन है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, दैट इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन माने वो कम्युनिकेशन जहां पे हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। Verbal communication is such type of communication that includes use of words। और अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें हम चार तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं। अब ये चार प्रकार कौन से हैं? सबसे पहला है ओरल कम्युनिकेशन। देखिए ज्यादातर हमारा कम्युनिकेशन लोगों के साथ होता है वो बोल के होता है, बातचीत करके होता है। और जब भी हम बोलते हैं या बातचीत करते हैं तो हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमने सीखा कि जब हम शब्दों का इस्तेमाल करके हमारा मैसेज सामने वाले बंदे तक पहुंचाते तो उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्योंकि हम बोल कर ये कम्युनिकेशन करते हैं इसे हम कहेंगे ओरल कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन थ्रू स्पीकिंग और स्पोकन वर्ड्स इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। अब इसका जुड़वा भाई है जैसे हम कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन कम्युनिकेशन। When we communicate through writing or written words, it is called written communication। जब हम अपनी बात लिखकर या आज के जमाने के अनुसार टाइप करके किसी को भेजते हैं तो उसे हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे मान लो कि मैंने व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड को कुछ मैसेज किया, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। 2 दिन में ऑफिस नहीं जा पाने वाला हूं तो मैं अपने बॉस को एक एप्लीकेशन ईमेल से भेजता हूं, लीव एप्लीकेशन। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। अब इसके अलावा जो दो कम्युनिकेशन आपके सिलेबस में है जिन्हें इंक्लूड किया गया है वर्बल कम्युनिकेशन, उनके बारे में हम सीखेंगे और इनका नाम है विजुअल कम्युनिकेशन। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिनको देखकर हमें कोई मैसेज मिलता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था पिछले सेशन में कि सपोज यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल, यू आर गोइंग समवेयर। द मोमेंट यू रीच ट्रैफिक जंक्शन you see red signal, so what will you do? You will apply the brakes and you will stop your vehicle. Why? Because you saw something, you noticed something. What that something was? It was a red light or red signal. Did it say anything to you? Yes. What did it say? It say stop. रेड सिग्नल कुछ बोलता नहीं है पर ट्रैफिक का जो रेड सिग्नल है वो हमें मैसेज तो कम्युनिकेट करता है और वो मैसेज है रुकिए, स्टॉप। तो जब आप कहीं पे जा रहे थे और ट्रैफिक जंक्शन पे आपको ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी को रोकना पड़ा क्योंकि सामने आपने रेड सिग्नल ऑन देखा। तो वो रेड सिग्नल जो है वो रेड सिग्नल भी आपको कुछ कम्युनिकेट कर रहा था और वो कम्युनिकेशन था स्टॉप, रुक जाइए। सो दैट इज कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन। माने जो चीजों को देखकर हमें कुछ मैसेज मिलता है, वो चीजें कुछ बोलती नहीं, शब्दों का प्रयोग नहीं होता, पर उन्हें देखकर अगर हमें कुछ मैसेज मिलता है तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। Similarly, one more communication is known as, it's considered as a verbal communication, that is audio visual communication। ऑडियो माने जो चीज को हम सुनते हैं। अब वो बहुत ही सिंपल सा चीज हो सकती है जैसे आपके मोबाइल में आपने सेट किया हुआ अलार्म। अभी तो कोविड-19 के चलते हम लोग घर में फंसे हैं, हम इतना फ्रीक्वेंटली इतना रेगुलरली बाहर नहीं मूव करते। तो क्या होता है ना
कि सुबह में लोग शांति से उठते हैं, पर जब हमारा रूटीन एक बार लाइन पे आ जाता है, जैसे हम पहले किया करते तो ये सब सेटल होने के बाद हम करेंगे, हम सुबह में जल्दी उठने का कोशिश करेंगे। अब क्योंकि हमारा आदत छूट गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको अपने मोबाइल में या घड़ी में अलार्म सेट करना पड़ेगा। अब अलार्म अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ अलार्म होते हैं जो आपको साउंड से जगाते हैं, इट कैन बी बीप बीप और एनीथिंग लाइक दैट। कुछ अलार्म होते हैं जहां पे आपको शब्द या गीत सुनने को मिलते हैं, आपका चॉइस का कोई गाना हो सकता है, कोई भजन हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, गुड मॉर्निंग फॉर एग्जाम्पल। मतलब जब हम किसी चीज को सुनते हैं, ऑडियो माने सुनना, और वो सुनकर हमें कुछ समझ में आता है, कोई मैसेज मिलता है, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑडियो कम्युनिकेशन। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो एंड विजुअल, माने जिसको हम देख सकते हैं और जिसको हम सुन सकते हैं, ऐसी चीज है। तो ये दोनों ही चीजों का कॉम्बिनेशन, इसे भी हम कहते हैं वर्बल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे मैं एक छोटी चीज आपको क्लियरली बताना चाहूंगा कि इसमें जो विजुअल कम्युनिकेशन है, actually it is not a part of verbal communication because it does not follow the definition of verbal communication. See, verbal communication माने जहां पे शब्दों का इस्तेमाल होता है। मान लो आपने किसी पोस्टर देखा जिसपे कुछ लिखा नहीं, बस कोई ड्राइंग है, या जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वो ट्रैफिक लाइट्स का, जहां पे वो लिखा नहीं है मैसेज, पर वहां पे सिर्फ कलर से हमको कोई मैसेज मिलता है, तो यहाँ पे वर्ड्स कहाँ है? सो आइडियली थियोरेटिकल अगर हम देखने जाओ तो विजुअल कम्युनिकेशन को हम वर्बल कम्युनिकेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे शब्दों का प्रयोग नहीं होता। हम सिर्फ उन्हीं विजुअल्स को वर्बल कम्युनिकेशन में कंसिडर कर सकते हैं जहां पे विजुअल के साथ साथ कोई शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया होता है। जैसे ऑडियो विजुअल को हम दोनों ही तरीके से गिन सकते हैं, इट कैन बी वर्बल कम्युनिकेशन, इट कैन ऑल्सो बी अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सी, क्योंकि व्हेन यू लिसन टू ऑडियो में सिर्फ म्यूजिक है, कोई शब्द नहीं है, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। पर अगर ऑडियो में शब्द है, जैसे गाना हो गया, भजन हो गया, गुड मॉर्निंग वाला मैसेज हो गया, तब जाके हम उसको वर्बल कम्युनिकेशन में कंसिडर करते हैं। तो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में भी अगर शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, तब जाके हम उनको वर्बल कम्युनिकेशन में कंसिडर करेंगे। पर अगर उसमें सिर्फ म्यूजिक या सिर्फ किसी विजुअल का प्रयोग किया गया है, तो उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन में कंसिडर नहीं कर सकते। What is the other means of communication? The second means of communication is called non-verbal communication. As the name indicates, non-verbal means without using words. So, जो कम्युनिकेशन में हम किसी भी तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, पर फिर भी हम कोई मैसेज सामने वाले को देते हैं या हमें कोई मैसेज मिलता है, दैट इज नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन काफी तरह के होते हैं, पर जैसे हम अपने सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इतने तरह के हैं। सबसे पहला है फिजिकल अपीयरेंस, माने हमारा बाह्य देखाव, हम कैसे दिखते हैं। लेट मी आस्क यू वन थिंग, व्हेन यू मीट अ स्ट्रेंजर, you look at that person and what do you notice? You notice the external appearance of the person, स्पेसिफिकली वो बंदा कैसा दिखता है, उसका हाइट कितना है, उसका स्किन कलर क्या है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाल कैसे हैं, उसकी आंखें कैसी है, इसके अलावा उसने किस तरह के कपड़े पहने हैं, वो कपड़ों का कलर क्या है, वो कपड़े उसको सूट करते हैं या नहीं, फिटिंग कैसा है, पैर में जूते पहने हैं, चप्पल पहना है, स्कॉल पहना है, सैंडल्स पहने हैं। नो, so you try to make some judgment about that stranger on the basis of his or her personal appearance or external appearance. तो किसी भी व्यक्ति के देखाव के बिना पर हम उसके बारे में कुछ जजमेंट लेते हैं, उसके बारे में कुछ सोच बनाते हैं। अब ये सोच टेम्पररी हो सकती है, कुछ केसेस में ये सोच लंबे अरसे तक दिमाग में रहती है। सो सामने वाला बंदा जो कि स्ट्रेंजर है, उसका अपीयरेंस, उसका देखाव, उसके कपड़े,
उसका कपड़े पहनने का तरीका, ये सारी चीजें भी वो बंदे की पर्सनालिटी के बारे में, वो बंदे के नेचर के बारे में, वो बंदे के बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ ना कुछ मैसेज कम्युनिकेट करती हैं। जैसे you come across somebody who has not shaven himself for long, so what impression will you get? You may think that बड़ा ही केयरलेस बंदा है, दाढ़ी बढ़ा के रखिए, शेविंग नहीं कर रहा। कुछ लोग बोलेंगे यार बड़ा ही गंदा बंदा है, नहाया भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि on the basis of external appearance of a person we make lot of judgments and many a time ये जजमेंट हमारे गलत साबित होते हैं। तो बंदे का फिजिकल अपीयरेंस है वो आपको कोई शब्दों से कुछ बयान नहीं करता, पर उसको देखकर आपको कुछ ना कुछ तो मैसेज मिलता है। जैसे आप किसी बंदे से मिलते हो जिसके शर्ट का ऊपर का बटन खुला है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट पर्सन? मान लो बंदा बहुत ही अच्छी तरीके से आपसे बात कर सकता है, उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, उसकी बात करने का तरीका बहुत ही सॉफ्ट है, स्टिल एक शर्ट का बटन खुला होने से आप शायद उसके बारे में कुछ नेगेटिव ख्यालात सोच के रखो। सो यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो खुला हुआ बटन है विच इज अ पार्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ दैट पर्सन, उसने आपको कोई नेगेटिव मैसेज कम्युनिकेट किया। सो फिजिकल अपीयरेंस के बाद होता है हमारा आई कॉन्टेक्ट। सी जब भी हम किसी से मिलते हैं फेस टू फेस और जब हम वो बंदे से बात करते हैं तो ज्यादातर हम उसकी आंखों में देखकर बात करते हैं। सेम इन दिस केस। सो हम how long we look at the other person is known as eye contact. किसी भी व्यक्ति से फेस टू फेस बात करने के समय पर हम उसको कैसे और कितने लंबे समय तक देखा करते हैं उसे आई कांटेक्ट कहते हैं। एंड आई कांटेक्ट आल्सो कम्युनिकेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट टेल्स यू अबाउट द पर्सन्स इनर मूड एंड फीलिंग्स। सामने वाला बंदा वो क्या फील कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कई बार ये चीजें हम उसकी आंखों से पता कर सकते हैं। आई कॉन्टेक्ट के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है पोस्चर। व्हाट इज पोस्चर? द वे यू स्टैंड, सिट और वॉक इज कॉल्ड पोस्चर। प्लीज डोंट प्रोनाउंस इट एज पोस्टर, इसका सही उच्चारण है पोस्चर। पोस्चर माने किसी भी बंदे का खड़े रहने का, बैठने का या चलने का तरीका। अब आपके पोस्चर से भी आप अपने बारे में काफी कुछ कम्युनिकेट करते हो। दिक्कत ये है ना फ्रेंड्स कि ये जो सारी चीजें जैसे आपका अपीयरेंस, आपका आई कांटेक्ट, आपका पोस्चर और दो चीजें जो मैं बताने जा रहा हूं, ये सारी चीजें ज्यादातर हमको पता नहीं चलती कि वो हमारे बारे में क्या मैसेज कम्युनिकेट करती है। हो सकता है कि कहीं पे किसी जगह पे हम अपना एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं शब्दों के द्वारा, बातों के द्वारा, पर उस वक्त हमारा अपीयरेंस या हमारा आई कांटेक्ट या हमारा पोस्चर या और कोई चीज हो सकता है कि हमारे बारे में कुछ नेगेटिव मैसेज दे रही हो। क्योंकि दिक्कत ये है ना कि हमारे आगे आईना नहीं लगा है कि जिसके अंदर हमें दिखता है कि हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, हम कैसे लग रहे हैं। पर ये सारी चीजें हमारे बारे में सामने वाले लोगों को बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ कम्युनिकेट करती है। पोस्चर के बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, उसे हम कहेंगे जेस्चर्स। जेस्चर्स मीन मूवमेंट्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ बॉडी, योर हैंड्स, योर शोल्डर्स, टोर्सो एंड हेड। हमारे हाथ, हमारे शोल्डर्स और सिर की मूवमेंट्स के द्वारा जो मैसेज कम्युनिकेट होता है उसे हम कहते हैं जेस्चर्स। You'll notice that all the good speakers, whenever they speak, whenever they communicate, they use their hands. They convey their message more effectively and more interestingly with the use of their hands. So gesture से भी हम काफी सारी चीजें बहुत effectively convey करते हैं। Gestures add meaning to our words. They make our talk impressive and effective. जेस्चर्स के बाद एक और एलिमेंट है जो कि बहुत मायने रखता है, दैट इज फेशियल एक्सप्रेशंस। हमारे चेहरे पे जो कोई भी भाव आते हैं इसे हम कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस। इट इज सेड दैट आवर फेस इज लाइक अ बुक।
और हर एक बुक का एक इंडेक्स होता है जिसमें लिखा होता है कि बुक में कितने टॉपिक्स हैं और कौन सा टॉपिक कौन से पन्ने पे है। तो हमारा चेहरा भी किताब की तरह इसके ऊपर ये भी एक इंडेक्स का काम करता है। हमारे दिमाग में जो कोई भी भाव है, जो कोई भी फीलिंग्स है, जो कोई भी इमोशंस है, वो ज्यादातर हमारे चेहरे पे आ जाते हैं जब भी हम किसी से बात करते हैं। दिक्कत ये है ना कि हमें इस चीज का ज्यादातर पता नहीं होता कि हमारे चेहरे पे क्या दिख रहा है। तो कई बार ये होता है कि हमारे शब्दों द्वारा हम कुछ एक चीज बताते हैं और उसी वक्त हमारा चेहरा कुछ और बोलता है, तो सामने वाले को कंफ्यूजन होता है बिकॉज ही इज रिसीविंग टू डिफरेंट मैसेजेस, प्रोबेबली टू अपोजिट मैसेजेस एट अ टाइम। सो ही गेट्स कंफ्यूज बिकॉज ही इज नॉट एबल टू डिसाइड कि दो में से कौन सा मैसेज सही है, ये जो शब्दों द्वारा आ रहा है वो, या फिर इनके चेहरे पर जो भाव दिखा रहे हैं वो। आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। सी, you are studying in a class, you are a ranker student। हर टेस्ट में आपके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। आपके बिल्कुल बगल की बेंच पे एक और स्टूडेंट है जो आपका क्लास में एकदम नंबर 1 कॉम्पिटिटर है। आपके और उसके नंबर के बीच में 1-2 मार्क का डिफरेंस रहता है। सो कभी कभी ये होता है कि वो आगे निकल जाता है, कई बार आप आगे निकल जाते हो। अब ये हुआ कि अभी 2 दिन पहले एक टेस्ट कंडक्ट किया गया और आज उसका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। आपको बड़ी ही उम्मीद थी कि आपके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, पर हुआ कुछ अलग। क्या हुआ? वो जो आपका कॉम्पिटिटर था उसके हाईएस्ट मार्क्स आए। अब सीधी सी बात है, एक ही क्लास में रहते हो, फ्रेंड्स हो और फैकल्टी के सामने, तो आपको एक दूसरे के साथ बात करनी पड़ेगी। मन में तो बिल्कुल इच्छा नहीं है, पर वो बंदे को कॉन्ग्रेचुलेट करना जरूरी समझा। तो अभी आप क्या करोगे? आप उसके पास जाओगे, उसके सामने देखोगे, अपना हाथ आगे बढ़ाओगे, हैंडशेक करके आप उसको कहोगे कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो एक्चुअली कैसे होना चाहिए? इट शुड गो लाइक दिस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है। अब यहां पे आपने नोटिस किया कि जब मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला तो मेरे मुंह से जो आवाज आई, जो शब्द निकले, वो पॉजिटिव शब्द थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, शुभकामनाएं, बधाई हो, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। इसको जिस तरीके से मैंने बोला, बहुत ही उत्साह के साथ, एंथुसियास्टिकली, वो भी पॉजिटिव था। और आपने नोटिस किया होगा कि ये शब्द बोलने के टाइम पे मेरे चेहरे पे स्माइल आया था, मेरी आंखें थोड़ी ब्रॉड हो गई थी, और जिस तरीके से मैंने अपना हाथ दिया था मिलाने के लिए, वो भी सही था। सो दिस वाज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन। पर मुझे पता है ना, हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार ये होता है कि हमको अंदर से इच्छा नहीं होती बोलने की, पर चूंकि हमें बोलना पड़ रहा है इसलिए हम जाके बोलते हैं कांग्रेचुलेशंस। डिड यू नोटिस द वर्ड्स? वर्ड्स तो वही थे, कांग्रेचुलेशंस, पर दो चीजें चेंज हो गई, तीन चीजें चेंज हो गई। कौन सी तीन चीजें? मेरी आवाज में वो खनक नहीं थी, मेरी आवाज में वो खुशी नहीं सुनाई दी। कांग्रेचुलेशंस ऐसे बोला जैसे बड़ी ही मुश्किल से, बड़े ही दुख के साथ मैं उसको कांग्रेचुलेट कर रहा हूं। दूसरा चीज आपने देखा कि मेरे चेहरे के हाव भाव वो बड़े ही नेगेटिव थे, बड़े ही दुख वाले थे। और तीसरा, जिस तरीके से मैंने हाथ बढ़ाया, देखिए जैसे बिल्कुल इच्छा नहीं है, पर हैंडशेक करना जरूरी है इसलिए हाथ बढ़ा रहा हूं। अब ये कि यहाँ पे अपोजिट मैसेजेस जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन जो शब्द निकल रहे वो पॉजिटिव मैसेज कन्वे कर रहे हैं, पर उसके साथ मेरी आवाज, मेरे चेहरे के भाव और जिस तरह से मैं अपना हाथ बढ़ा रहा हूं वो कुछ नेगेटिव बता रहा है। वो चीजें ये बता रहे कि मैं दिल से कॉन्ग्रेचुलेट नहीं बोल रहा हूं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि मेरे शब्द एक चीज बोल रहे हैं जो कि पॉजिटिव है, और बाकी सारी जो चीजें हैं, जैसे मेरी आवाज, मेरे चेहरे के भाव और मेरे हाथ, मेरे जेस्चर्स, वो कुछ अलग बता रहे हैं, नेगेटिव। सामने वाला कंफ्यूज होगा। फ्रेंड, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कम्युनिकेशन में कि ज्यादातर हमारे शब्दों द्वारा हम जो बोलते हैं उससे कई गुना ज्यादा सही चीज हमारी बॉडी द्वारा कम्युनिकेट होती है। तो ज्यादातर केसों में यह होगा कि इसी सिचुएशन की अगर बात करते हैं तो मैंने शब्दों से जो बोला उसके ऊपर सामने वाला भरोसा नहीं करेगा, पर मेरी आवाज, मेरे चेहरे के भाव और मेरे जेस्चर्स के द्वारा जो मैसेज जा रहा है उसी को वो मानेगा या मानेगी। सो
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपके सिलेबस में इतना ही है। एक और चीज बताना चाहूंगा कि हमारा जो कल्चर है वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को असर करता है। एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं आपको मैं बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट से। इट इज सेन दैट ड्यूरिंग बिजनेस मीटिंग्स people from US they prefer direct eye contact with the opposite party and they prefer to sit close। माने जब भी कोई यूएस से कोई बंदा बिजनेस के लिए आता है, कंपनी के काम से आता है, तो हमारे नजदीक बैठता है ज्यादातर, और वो हमारे सामने बिल्कुल सामने देख के हमारी आंखों में आंखें डाल के बात करता है, बिकॉज इट इज वेरी नेचुरल फॉर हिम। एंड इफ यू कंपेयर वी एशियंस, वी आर बिट reserved and quite opposite. During a business meeting with somebody from other country, what we tend to do, we try to maintain the distance and we avoid continuous eye contact। हम जितना हो सके उतना सामने वाले बंदे से दूर बैठने का कोशिश करते हैं, और हम कॉन्स्टेंटली वो बंदे के सामने नहीं देखते, ज्यादातर हम नीचे देख के आजू बाजू देख के उससे बात करते हैं, या फिर हम बात करते पर हमारा 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 ध्यान कहीं और होता है। So this is an example of a difference in non-verbal communication because of the culture. But we need to understand that both the means of communication are very very important. अब यहाँ पे एक और चीज आपको बताना चाहूंगा just for the sake of clarification. Non-verbal communication इतना नहीं है, क्योंकि ये जो सारी चीजें it's just a part of body language। आपका आई कांटेक्ट, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके जेस्चर्स और आपका पोस्चर, ये चारों ही चीजें मिलकर हम इसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके अपीयरेंस से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से तो होता ही है, पर इसके अलावा भी काफी सारी चीजें जिसके द्वारा हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं सिर्फ आपको ऊपर से बता देता हूं। जैसे हमारी आवाज, हमारा बोलने का तरीका, टोन, हमारा वॉल्यूम, हमारा बोलने का स्पीड, बोलने के समय पर जो शब्दों को हम वजन देकर बोलते हैं, भार देकर बोलते हैं, इंसिस्ट करके बोलते हैं, वो सारा दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे हम कहते हैं पैरा लैंग्वेज। During face-to-face communication, we maintain some distance with the other person, knowingly or unknowingly, and that distance also communicates a message, जिसे हम कहते हैं space language या फिर proxemics, which is also a non-verbal communication। समय के द्वारा, हाँ, टाइम से भी हम कम्युनिकेट करते हैं। जैसे आप कहीं पे जल्दी पहुंच जाते हो अपॉइंटमेंट के टाइम से पहले, तो आप कोई मैसेज कम्युनिकेट करते हो। यदि आप देर से पहुंचते हो तो आप कुछ और मैसेज कम्युनिकेट करते हो। आप किसी बंदे से मिलने जाते हो और कितना देर आपको रिसेप्शन एरिया में बैठना पड़ता है, वो भी टाइम का कम्युनिकेशन होता है उससे। कोई काम करने में आप कितना टाइम लेते हो, कितना जल्दी उसको खत्म करते हो या कितना धीरे से काम करते हो, वो सारी चीजें भी आपको टाइम से कम्युनिकेट करती है। कुछ ना कुछ मैसेज तो कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे शब्दों का प्रयोग नहीं होता, तो ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। सो बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा हम कम्युनिकेशन करते हैं बिना शब्दों का प्रयोग किए, जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होता है। क्योंकि यहाँ पे हमारा एक बड़ा सा लिमिटेशन है कि हमारे सिलेबस में इतनी ही चीजें इंक्लूड की गई हैं, तो हम इतनी ही चीजों पर अभी ध्यान देंगे। अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बाद हम बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन पर, हम वापस आएंगे। और वर्बल कम्युनिकेशन में जो 4 प्रकार हमने बताए थे, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन विथ वर्ड्स एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन विथ वर्ड्स, इसकी हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओरल कम्युनिकेशन की। ओरल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स, दैट मीन्स थ्रू स्पीकिंग। व्हेन यू स्पीक एंड कम्युनिकेट अ मैसेज, इट इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। जब हम किसी से बात करके, बोलकर कम्युनिकेट करते हैं, तो उसे हम ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। आइए देखते हैं ओरल कम्युनिकेशन के कुछ एग्जाम्पल्स। जब हम टेलीफोन पर किसी से बात करते हैं, अभी तो मोबाइल फोन हम यूज करते हैं, तो मोबाइल फोन पर हम जब किसी से बात करते हैं, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। प्रेजेंटेशंस होते हैं,
बड़ी बड़ी कंपनियों में एम्प्लॉइज अलग अलग टॉपिक के ऊपर, अलग अलग विषय के ऊपर, अलग अलग चीजों के ऊपर अपने विचार प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन देना। सो प्रेजेंटेशन देने के टाइम पर व्यक्ति बोलता है, सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। मीटिंग्स होती है कंपनी में ऑलमोस्ट रेगुलर बेस पे, हर रोज कोई ना कोई मीटिंग कंपनी में चलती रहती है। मीटिंग में क्या होता है कि किसी एक डिपार्टमेंट के या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग इकट्ठा होते हैं और कोई एक टॉपिक के ऊपर वो अपने अपने व्यूज शेयर करते हैं। काफी सारा क्वेश्चन आंसरिंग होता है, आर्ग्यूमेंट्स होता है, डिस्कशन होता है और फाइनली कोई डिसीजन लिया जाता है या फिर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाता है। तो ये मीटिंग में जो कोई भी कम्युनिकेशन होता है वो मोस्ट प्रोबेबली वर्बल कम्युनिकेशन होता है, वो लोग बोलकर बात करते हैं। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, जब भी कुछ नया इन्वेंट करना होता है, जैसे कोई नई प्रोडक्ट या कोई नई सर्विस या कोई नया तरीका, नई प्रोसेस, या फिर जब भी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होता है, तो कई बार कंपनीज में एम्प्लॉइज का ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन लिया जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है कि जितने भी कंसर्न एम्प्लॉइज है उनको बुलाया जाता है, उनको बिठाकर जो मॉडरेटर होता है, मतलब जो मीटिंग कंडक्ट करने वाला बंदा होता है, वो उनसे प्रॉब्लम सॉल्व कर, उनको प्रॉब्लम बताता है कि भैया ये प्रॉब्लम है जिसको हमें आज सॉल्व करना है। और उसके बाद उनको कुछ टाइम दिया जाता है, जैसे 5 मिनट। अब 5 मिनट में रेंडमली जो भी दिमाग में आइडिया आता है, वो आइडिया हर एक बंदे को, वो मॉडरेटर को बताना होता है, जिसको या तो वो अपने लैपटॉप में टाइप करके या फिर बोर्ड के ऊपर लिखकर नोट करता है। तो जितने भी आइडियाज आते हैं उसको इवेल्युएट किए बिना, वो सही है या गलत, प्रैक्टिकल है या इम्प्रैक्टिकल, वो डिस्कस किए बिना सिर्फ उसको नोट किया जाता है। और उसके बाद एक हर एक आइडिया को लेकर उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। उसमें क्या प्लस पॉइंट्स है, उसमें क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, उसका डिस्कशन होता है और उस हिसाब से आइडिया को रेट किया जाता है। फाइनली इस तरह सभी आइडिया को इवेल्युएट करके एक आइडिया या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ आइडिया को एक सोल्यूशन के तौर पे माना जाता है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में भी जो भी कम्युनिकेशन होता है वो बोलकर होता है, सो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अब ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज, जो फायदा होता है ओरल कम्युनिकेशन का, वो है इट इज टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिकल। टाइम सेविंग माने जी, अगर आपको किसी को कुछ बोल के बताना है तो कितना टाइम लेते हो आप उसके लिए? 1 सेकंड, 2 सेकंड। अगर कुछ ज्यादा बताना है तो 2 मिनट, 3 मिनट। बहुत ही ज्यादा डिस्कशन करना तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। कंपैरेटिवली अगर देखने जाते हैं तो रिटर्न कम्युनिकेशन के साथ या उसके सामने अगर देखते हैं तो ओरल कम्युनिकेशन में टाइम कम लगता है। जैसे मुझे किसी को कुछ कहना है कि भैया आपका नाम बताओ, तो कितना टाइम लगता है? भाई साहब अपना नाम बताइए, कितना टाइम हुआ? हार्डली 1.5 सेकेंड। सो मतलब ओरल कम्युनिकेशन में कंपैरेटिवली टाइम कम लगता है एंड इज इकोनॉमिकल। कभी सुना है कि बोलने के ऊपर टैक्स लगता है? डू वी पे एनी टैक्स बिकॉज वी आर स्पीकिंग? डू वी हैव टू स्पेंड एनी मनी बिकॉज वी आर स्पीकिंग? किसी से बात करने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है क्या? सो कहने का मतलब ये है कि वो इकोनॉमिकल है, उसमें खर्चा ज्यादा नहीं आता या बिल्कुल नहीं आता। दूसरा फायदा है इमीडिएट फीडबैक एंड क्लेरिफिकेशन आर पॉसिबल। जैसे कि एग्जांपल, अब हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे, मैं सेंडर हूं और आप लोग रिसीवर्स हैं। ठीक है, मैं आपको मैसेज दे रहा हूं और आप मेरा मैसेज सुन रहे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं, उसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, डिकोडिंग हो रहा है। पहला शब्द है इमीडिएट फीडबैक। इमीडिएट फीडबैक का मतलब यह होता है कि कोई मैसेज देने के बाद आपने मुझे जो बताया, आपने मुझे जो रिप्लाई दिया, उसे हम फीडबैक कहेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन में या फिर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में ये हमारे पास स्कोप रहता है कि आपने कुछ बोला और अगर सामने वाले को वो चीज समझ में नहीं आई तो वो फौरन आपको पूछेगा। ठीक है,
वो कोई ना कोई तरीके से आपको फीडबैक देगा, या आप अगर कुछ पूछते हो तो वो बंदा आपको जवाब देगा। अगर जवाब नहीं भी देता तो भी उसको, उसके चेहरे को देख के, उसके चेहरे पे जो कंफ्यूजन है उसको देख के आपको कोई ना कोई फीडबैक तो मिल जाता है। मतलब यूजुअली क्या होता है ना कि ओरल कम्युनिकेशन में सामने वाले बंदे से हम फीडबैक इमीडिएटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ज्यादातर केस में फीडबैक इमीडिएट मिल जाता है, चाहे वो सही हो या गलत, बड़ा हो या छोटा। फीडबैक नॉर्मली हमें ऑन द स्पॉट मिल जाता है। अगर फीडबैक नहीं मिलता ना तो हम पूछकर फीडबैक मांग भी सकते हैं। जैसे पढ़ाने के बाद अगर किसी ने कुछ पूछा नहीं या किसी ने कुछ बोला नहीं तो मैं पूछ सकता हूँ कि बेटा समझ में आया ना, आप समझे ना। तो कोई ना कोई बंदा तो कोई ना कोई फीडबैक तो देगा, हाँ सर, ना सर, ठीक है। वर्बली नॉन वर्बली कैसे भी तो फीडबैक मिलेगा। तो ज्यादातर ये होता है ना, फोन पे भी बात करते हो और मान लो आपने कुछ पूछा और सामने वाले बंदे ने जवाब नहीं दिया इंस्टेंटली, तो आप पूछ सकते हो अरे भाई सो गए क्या, क्या हुआ, तो बंदा आपको रिप्लाई करेगा, बोलेगा। सो ज्यादातर केस में ये होता है ना कि ओरल कम्युनिकेशन में इमीडिएट फीडबैक नॉर्मली हमें मिल जाता है। दूसरा है क्लेरिफिकेशन। जैसे मैंने आपको कुछ पढ़ाया और मान लो आप में से किसी को वो चीज समझ में नहीं आई, तो नॉर्मली आप क्या करोगे, आप इमीडिएटली पूछ लोगे कि सर एक मिनट, ये जो आपने पॉइंट बताया वो पता नहीं चला, आप प्लीज वापस बताएंगे। सर एक एग्जांपल देंगे। से फिजिकली फेस टू फेस क्लासरूम सेशन में ये चीज पॉसिबल है, या फिर जूम सेशन भी अगर हम लेते हैं ऑनलाइन तो उसमें भी शायद ये पॉसिबिलिटी रहता है। वीडियो लेक्चर्स में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये एक लिमिटेशन है अभी, पर क्या करें। पर ज्यादातर केस में ये होता है कि अगर हमें कोई चीज पता नहीं चल रही तो हम सामने वाले बंदे को क्लेरिफाई करने के लिए बोल सकते हैं। सो इमीडिएट क्लेरिफिकेशन भी उसमें पॉसिबल हो सकता है। मान लो फोन पर बात कर रहे हो और अगर सामने वाले भाई साहब ने कुछ बोला, आपके समझ में नहीं आया, आपको पता नहीं चला, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भैया वापस बताओ, मैंने नहीं सुना या मुझे समझ में नहीं आया। तो इमीडिएट क्लेरिफिकेशन पॉसिबल है कहां पे, ओरल कम्युनिकेशन में। तीसरा फायदा है कि इट इज सूटेबल फॉर शॉर्ट मैसेजेस। जब भी हम किसी छोटी चीज को बताना चाहते हैं, मतलब छोटा सा मैसेज है, एक शब्द का हो सकता है, दो तीन शब्दों का हो सकता है, एक आध दो सेंटेंस का, इसे हम कंपैरेटिवली शॉर्ट मैसेजेस कहते हैं। तो जब भी हमें कोई छोटा मैसेज देना है तो हम लिखना प्रेफर नहीं करते हैं, हम नॉर्मली बोलकर बताते हैं। जैसे स्टैंड अप, सिट डाउन, कम हियर, प्लीज गो। दीज आर वेरी स्मॉल मैसेजेस, शॉर्ट मैसेजेस। तो इनको हम लिखकर नहीं बताते। जैसे मान लो अगर कोई लड़का क्लास में मस्ती कर रहा है और मुझे लग रहा है कि उससे पूरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं उसे कहूंगा कि बेटा थोड़ी देर बाहर घूम के आओ। अब देखो मैंने कितना बोला, बेटा थोड़ी देर बाहर घूम के आओ, बेटा थोड़ी देर बाहर घूम के आओ, 6 शब्दों का इस्तेमाल किया। तो कंपैरेटिवली शॉर्ट मैसेज। अब ये मैं बोल के बताऊंगा या फिर मैं चिट के ऊपर लिखूंगा, बेटा थोड़ी देर बाहर घूम के आओ, या फिर मैं वो बंदे से उसका नंबर लेके उसको मैसेज करूंगा, बेटा थोड़ी देर बाहर घूम के आओ। ये छोटा सा मैसेज है, तो ज्यादातर केस में मैं उसको बोलकर कम्युनिकेट करूं कि बेटा थोड़ी देर बाहर घूम के आओ, पर हाँ वापस जरूर आना। So usually oral communication is suitable for short messages। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि it can be accompanied by body language and tone of voice। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के दो एलिमेंट हम इसके साथ यूज कर सकते हैं और उसको एक कंप्लीट कम्युनिकेशन बना सकते हैं। ये दो एलिमेंट है, हमारी बॉडी लैंग्वेज और दूसरा है टोन ऑफ वॉइस, हमारी आवाज। जब भी किसी चीज को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करनी होती है तो हम हमारी आवाज और हमारी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं शब्दों के साथ। सो विद दिस आइडियल कॉम्बिनेशन वी आर एबल टू कम्युनिकेट अवर आइडियाज और इंफॉर्मेशन इन अ मच बेटर एंड इफेक्टिव मैनर। तो ये सारे हो गए ओरल कम्युनिकेशन के फायदे। अब ओरल कम्युनिकेशन में सिर्फ फायदे हैं ऐसा नहीं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, आइए उनकी बात करते हैं। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है ओरल कम्युनिकेशन का वो है इट कैन नॉट बी रिटेन फॉर लॉन्ग। मैं हमारे जमाने की बात करता हूं,
अभी तो वी हैव अ टेक्नोलॉजी दैट वी कैन एक्चुअली रिकॉर्ड व्हाट समवन इज सेइंग on our Android phone, and we can also save it for a longer period of time. But practically speaking, everywhere we cannot do that. हर एक जगह पे आप अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करके नहीं जा सकते, बैटरी भी काफी कंज्यूम हो जाता है, कई बार कॉल आता है तो वो कट हो जाता है, बंद हो जाता है। तो हमेशा हम सामने वाले बंदे की बात को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो मान लो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि दो लड़के मेरे पास आए, मेरे स्टूडेंट, और आकर ही एक ने दूसरे के बारे में कंप्लेन की कि सर इसने मुझे गधा बोला। बड़े बच्चे भी अल्टीमेटली बच्चे ही होते हैं, सर इसने मुझे गधा बोला। अब दूसरा बंदा तो बिल्कुल मुकर गया, नहीं सर मैंने इसको गधा नहीं बोला, नहीं सर इसने बोला, सर मैंने नहीं बोला, सर इसने बोला, सर मैंने नहीं बोला। नाउ मुझे बोलना पड़ेगा चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। अब मैं पूछूंगा कि भैया तुमने इसको गधा क्यों बोला, वो बोलेगा सर मैंने नहीं बोला, नहीं सर इसने बोला। तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा भैया तुम्हारे पास कोई प्रमाण है, तुम्हारे पास कोई पुरावा है, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है जिससे तुम साबित कर पाओ कि इसने तुम्हें गधा बोला? आपके पास है? इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे मैंने बोला कि एवरी टाइम यू कैन नॉट कीप योर मोबाइल रिकॉर्डर ऑन एंड कीप ऑन रिकॉर्डिंग एवरीथिंग दैट हैपेंस एवरी डे। सो यहाँ पे ज्यादातर ओरल कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये कि उसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला, इसका हमारे पास एक परमानेंट रिकॉर्ड नहीं रहता। तो कल जाके कुछ प्रॉब्लम बढ़ता है तो हम हमारी साइड हम अपनी साइड को सेफ नहीं कर सकते, हम हमारी बात को सही बता नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। सो इट कैन नॉट बी रिटेन। रिटेन मतलब उसको संभाल के रखना, फॉर लॉन्ग माने लंबे अरसे तक हम उसको रिकॉर्ड करके संभाल के रख नहीं सकते। हाँ, कई जगह पे पॉसिबल होता है, कई केस में। दूसरा एक डिसएडवांटेज है कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स मैसेज। देखिए अभी तो एक बड़ा सा लिमिटेशन हमारे सामने आ गया है कि हमको जो कुछ भी पढ़ाना है हमें वो इसी तरह से यही माध्यम से आपको रिकॉर्ड करके भेजना है। मान लो अगर यही चीज हम लोग फेस टू फेस क्लासरूम सेशन में करते हैं तो क्या होता है, इतना सारा जो कि हम एक वीडियो लेक्चर में पढ़ाते हैं हम एक सेशन में कभी नहीं पढ़ाते। हम ज्यादातर इससे आधी चीज पढ़ाते हैं, थोड़ा और खुल के, थोड़ा और डिटेल में पढ़ाते हैं, थोड़े और एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाते हैं, थोड़े और प्रैक्टिकल चीजों को बता के पढ़ाते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि हम सिर्फ नहीं बकबक करते रहते, हम रुकते हैं, हम पूछते हैं, हम किसी के प्रश्न का, किसी की क्वेरी का आंसर देते हैं, काफी बार हमारा डिस्कशन होता है। कई बार पढ़ाने के समय पर हम काफी सारी चीजें भी बता दे, जैसे छोटा कोई वीडियो बता दिया, कोई ग्राफिक बता दिया। तो क्लासरूम सेशन में ये होता है ना, हम स्पीड भी हमारी थोड़ी कम रहती है, इतना फास्ट हम नहीं पढ़ाते। सो ज्यादातर केस में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें अगर आपको किसी को बतानी है और उसमें भी अलग अलग टाइप की चीजें बतानी है, सो उसके लिए ओरल चैनल इज नॉट प्रॉपरली suitable, then you need to refer to the written channel। कि जब आप जो चीज बताना चाहते हैं वो बहुत ही लंबी है, बहुत ही लेंदी है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, माने एक बार बोलने से सामने वाले को समझ में नहीं आने वाला, उसको 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार बताना पड़ेगा, उसके बाद शायद उसको समझ में, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो ओरल कम्युनिकेशन, सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन एडवाइजेबल नहीं है, जिसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। वहां पे आपको कोई एडिशनल चैनल का या एडिशनल मीन्स का यूज करना पड़ेगा, जो कि हम नॉर्मली करते हैं। जैसे मैंने आपको सेशन में कुछ पढ़ाया, अब आपके पास स्टडी मटेरियल होगा बिजनेस कम्युनिकेशन का, तो जब भी आप फ्री पढ़ते हो तो मैंने जो पढ़ाया वो आप बुक में से पढ़कर उसको सॉलिडिफाई कर सकते हो। कुछ कहीं पे डाउट है तो आप उसको देख के चेक कर सकते हो। तीसरा ड्रॉबैक जो है ओरल कम्युनिकेशन का वो है
bad or partial listening may affect the comprehension of the message. Now, this is not a drawback in case of sender. This is a drawback of receiver. अगर किसी बंदे को सुनने में दिक्कत है, कोई हियरिंग प्रॉब्लम है, या फिर उसका लिसनिंग स्किल अच्छा डेवलप नहीं हुआ है, तो ये चीज हो सकती है कि मैंने कुछ पढ़ाया, मैंने कोई इंपॉर्टेंट मैसेज बताया, उसको ठीक से सुनाई नहीं दिया या बिल्कुल नहीं सुनाई दिया. सो अगर लिसनिंग स्किल्स नहीं है बंदे की, या वो अच्छा लिसनिंग नहीं कर सकता, तो हो सकता है कि मैंने जो बोला उसको सुनाई नहीं दिया, या फिर आधा सुनाई दिया, आधा ऊपर से गया. तो इस केस में क्या हो रहा है कि कॉम्प्रीहेंशन, माने जो कुछ भी मैंने बोला उसको सुनकर समझना, वो वाली चीज मुश्किल हो जाएगी. कई बार क्लास में ये होता है, स्पेशली जब बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, तो लास्ट लेक्चर में ये दिक्कत आती है पढ़ाने वाले को और पढ़ने वाले को, दोनों को. पढ़ने वाला कितनी भी कोशिश कर ले अच्छी तरीके से, अच्छे मायने से पढ़ाने का, पर बच्चों को मजा नहीं आता क्योंकि वो थक जाते हैं. एक और डिसएडवांटेज बताऊंगा. समटाइम्स, ऐसे तो हमने बोला कि शॉर्ट मैसेजेस के लिए हम ओरल कम्युनिकेशन को प्रेफर करते हैं, बट many a times it happens that because of that immediate feedback wala benefit, it becomes lengthy. I give you an example. मान लो मैं आपसे कहीं पे मिला और मेरी आदत है तो मैंने आपसे बात करना शुरू किया, हाय आई एम हेमांग, फिर आपने अपना नाम बताया, मैंने आपसे पूछा आप क्या करते हो, आपने बोला मैं सीएस पढ़ता हूं या पढ़ती हूं. मैंने कहा क्या बात है, मैं सीएस में पढ़ाता हूं, राजू सर और मुकेश सर की टीम में हूं, डीडी इंस्टीट्यूट में मैं बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाता हूं. क्या बात करते हो सर. देखा क्या हुआ, मैं कुछ बोला सामने आपने कुछ बोला, आपने कुछ बोला सामने मैं कुछ बोला, हमारी बातें चलती गई चलती गई चलती गई, मतलब कम्युनिकेशन की साइकिल 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 आगे बढ़ती गई. सो इस केस में क्या हो रहा है ना कि ओरल कम्युनिकेशन कई बार बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, लेंदी हो जाता है. एक और भी दिक्कत आती है कि रीजनल एक्सेंट्स एंड मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग. रीजनल एक्सेंट्स, हम जो प्रदेश से आते हैं, हम जो जगह पे रहते हैं, वहां हम भाषा को किसी और स्टाइल से बोलते हैं. जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे जो लोग नॉर्थ इंडिया से आते हैं या फिर जो वेस्ट बंगाल या साउथ इंडिया से आते हैं, जब वो लोग हिंदी में बोलते हैं ना, तो उनका बोलने का स्टाइल थोड़ा सा नॉर्मल हिंदी बोलने वाले लोगों से अलग पड़ता है. देखिए कौन अच्छा बोलता है, कौन अच्छा नहीं बोलता, कौन सही बोलता है, कौन गलत, उसकी बात नहीं है, बात है सिर्फ बोलने का तरीका. तो उसे हम कहते हैं रीजनल एक्सेंट्स. अगर जैसे मैं गुजराती की बात करूं, तो बड़ौदा में जो बंदा है और गुजराती बोलता है, और सूरत में जो बंदा रहता है और गुजराती बोलता है, वो दोनों की गुजराती में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस फील होगा, साउंड करेंगे आप, सुनाई देगा. दोनों ही बंदे एक ही भाषा बोल रहे हैं, गुजराती, पर क्योंकि एक बंदा बड़ौदा में रह रहा है, बड़ौदा का जो कल्चर है, जो माहौल है, तो उससे वो एक तरह की गुजराती बोलता है, और दूसरा बंदा सूरत में रहता है, तो सूरत का जो माहौल है, वहां का जो कल्चर है, उसकी असर उसकी गुजराती पर होती है. तो उसका गुजराती गुजराती ही होता है, पर उसका तरीका कुछ अलग होता है. जब आप सुनते हो ना दोनों बंदे को गुजराती में बोलते हुए, तो आपको डिफरेंस फील होता है. तो इसे हम कहते हैं रीजनल एक्सेंट्स. द सेम इज एप्लीकेबल टू इंग्लिश. When an Indian person speaks in English, he sounds different. When an Australian speaks English, he sounds quite different. And when an American person speaks in English, he sounds totally different. It's just because of regional accents. And there is one more thing, mother tongue influence. जैसे मैं गुजराती हूं, मेरी मातृभाषा गुजराती है. अब जब मैं इंग्लिश बोलता हूं, विच इज अ फॉरेन लैंग्वेज, तो हो सकता है कि मेरी गुजराती भाषा की जो स्टाइल है बोलने की, उसका कोई ना कोई शेड, उसका कोई ना कोई पहलू इंग्लिश को छू जाए, टच कर जाए, और जब मैं इंग्लिश बोलूं तो वो गुजराती स्टाइल का इंग्लिश लगे.
जैसे कई लोग इंग्लिश बोलते हैं, वो गुजराती लोग, तो कुछ ऐसा सुनाई देता है, वी आर फाइन ना, हाउ आर यू, ठीक है ना। अब नॉर्मल इंग्लिश बोलने वाला बंदा कभी ऐसे नहीं बोलता, वो बोलता है वी आर फाइन, हाउ आर यू। तो गुजराती बंदा बोलता है वी आर फाइन ने, हाउ आर यू। तो गुजराती वो जो स्टाइल होती है, ગુજરાતીમાં આપણે લહેકો કહીએ, એ ઇંગ્લિશ ભાષાને ટચ કરી જાય છે અને એને લીધે ઇંગ્લિશ કંઈક જુદું લાગે છે, એને કહેવાય મધર ટંગ ઇન્ફ્લુઅન્સ, which is again possible in oral communication. So many a times it happens that when you hear a non-native speaker of English speaking in English, you may not probably understand properly. सी हमारे वहां इंडिया में काफी सारे लोगों के साथ ये होता है कि जब भी वो हॉलीवुड की कोई इंग्लिश मूवी देखते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता। इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि उनकी इंग्लिश वीक है। इंग्लिश मीडियम के भी काफी सारे बच्चों का ये कहना होता है कि सर जब भी हम हॉलीवुड का मूवी देखते हैं तो हमें इंग्लिश समझ में नहीं आता, पूरा नहीं आता, थोड़ा बहुत आ जाता है। सो अगेन द रीजन इज दैट कि अमेरिका के लोग या हॉलीवुड वाले जो लोग इंग्लिश में बोलते हैं तो इनका इंग्लिश बोलने का तरीका नेचुरल या नॉर्मल इंग्लिश से काफी अलग होता है। और अगर आपको इस तरह की इंग्लिश सुनने का आदत नहीं है तो वो समझना आपके लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग होगा। सो ये सारे थे ओरल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज। अब हम बात करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के भाई साहब की, जिनका नाम है रिटन कम्युनिकेशन। आइए देखते हैं। सो रिटन कम्युनिकेशन के बारे में हमने बोला था कि कम्युनिकेशन थ्रू रिटन वर्ड्स या फिर कम्युनिकेशन थ्रू राइटिंग, माने जब आप लिख कर या टाइप करके कोई मैसेज किसी को भेजते हो, अब वो व्हाट्सएप मैसेज हो गया या फेसबुक पोस्ट हो गई या फिर समझो आपने किसी को ईमेल भेजा या किसी को बिजनेस लेटर लिख के कुरियर करके भेजा, कुछ भी हो सकता है। पर लिख कर जब आपने या टाइप करके जब आपने कम्युनिकेशन किया तो इसे हम कहेंगे रिटन कम्युनिकेशन। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेटर्स, जिसे हम A4 साइज के पेपर के ऊपर, जिसके ऊपर हम प्रिंट आउट लेते हैं, जिसके ऊपर कोई अथॉरिटी का साइन होता है, जिसको फोल्ड करके एनवेलप के अंदर रख के हमें कुरियर से भेजते हैं, दैट इज नोन एज बिजनेस लेटर्स। इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ईमेल्स वेरी कॉमन, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिपोर्ट्स, पूरे दिन में हमने जो काम किया या पूरे हफ्ते में या फोर्टनाइटली या फिर पूरे महीने में हमने जो काम किया, इसका हम एक बढ़िया सा रिपोर्ट बनाते हैं और ये रिपोर्ट हम अपने बॉस को भेजते हैं। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। प्रपोजल्स, जब भी आप अपनी प्रोडक्ट बेचते हो, किसी को ऑफर करते हो या फिर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जाते हो तो आपको एक प्रपोजल बना के देना पड़ता है। उसमें पूरा डिटेल होता है कि आप अपनी सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड करोगे, कौन सी टर्म्स और कंडीशंस रहेगी, क्या गारंटी वारंटी रहेगी, उसका चार्जेस आप क्या लगाओगे, पेमेंट किस तरह से होगा, ये पूरा ब्यौरा आपको टाइप करके एक लेटर पे देना पड़ता है। इसे हम कहते हैं प्रपोजल। अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। सर्क्यूलर्स, जब भी किसी कंपनी में कोई एक इंफॉर्मेशन बहुत सारे एम्प्लॉइज को पास ऑन करनी होती है तो जो पर्टिकुलर टूल यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं ऑफिस सर्क्यूलर। सो ये सारे एग्जांपल हो गए रिटन कम्युनिकेशन के। अब रिटन कम्युनिकेशन के फायदे और उससे क्या नुकसान होता है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। सबसे बड़ा एडवांटेज रिटन कम्युनिकेशन का जो है, जो कि हमें नॉर्मली ओरल कम्युनिकेशन में नहीं मिलता, दैट इज सफिशिएंट टाइम टू प्लान द मैसेज एंड दिस इज द बेनिफिट टू द सेंडर। से फॉर एग्जांपल, आज मैं आपको मिला, हमने 1 घंटे तक बातचीत की, एंड एट द टाइम ऑफ डिपार्चर आपने मुझे कहा कि सर आई एम रियली हैप्पी मीटिंग यू, और आप जिस तरह का ट्रेनिंग देते हो मैं चाहता हूं कि आप हमारी कंपनी में हमारे एम्प्लॉयज को भी इस तरह का ट्रेनिंग दो कम्युनिकेशन का। सर इसका एक डिटेल प्रपोजल बना के आप मुझे भेजोगे। अब देखिए, प्रपोजल बना के मांगा है तो मेरे पास पूरा 1 दिन है, मैं घर पे जाके या अपनी ऑफिस पे जाके शांति से रिलैक्स होके फिर प्लानिंग कर सकता हूं और उस हिसाब से मैं पूरा एक प्रपोजल ड्राफ्ट कर सकता हूं।
ईमेल में वो प्रपोजल को अटैच करके मैं आज ही या फिर कल सवेरे में सामने वाले भाई को भेज सकता हूं। मतलब कि मेरे पास प्लानिंग करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए सफिशिएंट टाइम है। पर मान लो वो भाई ने मुझे इमीडिएटली पूछा कि सर आप मेरे को अपना बता दीजिए प्रपोजल, क्या चार्जेस लोगे और क्या क्या कवर करोगे, तो मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं सोचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होगा। उनको अभी का जवाब चाहिए, ही वांट्स एन इमीडिएट आंसर। सो हो सकता है कि वहां पे मेरे से कोई गलती हो जाए जो मेरे लिए नुकसानकारक हो सकता है कि मैं नॉर्मली जो चार्ज करता हूं उसकी जगह मैं कम चार्ज बोल दूं या ज्यादा बोल दूं। कम बोल दूं तो मेरे को फिर कम में काम करना पड़ेगा, और ज्यादा बोल दूं तो हो सकता है वो ऑफर मेरे हाथ से चली जाए, क्योंकि मुझे सोचने का टाइम चाहिए जो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा। सो रिटर्न कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा एडवांटेज है सेंडर को कि उसको प्लानिंग के लिए, प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलता है। लेट इट बी 5 मिनट्स और से 1 आवर, बट यू गेट द टाइम फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्लानिंग। रिसीवर को भी टाइम मिलता है, मोर टाइम टू डिकोड द मैसेज। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, ओरल कम्युनिकेशन चल रहा है, तो मैं जो कुछ भी बोलूंगा, जितनी स्पीड से बोलूंगा, जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो एक ही बार होगी ना। हर बार तो मैं उसको रिपीट या रिवीजन नहीं कर पाऊंगा। तो क्या होगा कि मैंने जैसे मान लो अभी एक सेंटेंस बोला, आपके दिमाग को और कान को कोऑर्डिनेशन करके वो सेंटेंस को जितना हो सके उतना जल्दी प्रोसेस करना पड़ेगा, उसका मीनिंग निकालना पड़ेगा और मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा। और मान लो आपने रिप्लाई किया तो तब तक मेरा दूसरा सेंटेंस आ जाएगा, वापस वो चीज करनी पड़ेगी, तीसरा, चौथा, पांचवा। मतलब ये जब तक हमारा ओरल कम्युनिकेशन चलेगा तब तक आपको कम टाइम में या फिर बिल्कुल नहीं बराबर टाइम में मेरी बात को सुन के, उसके ऊपर विचार करके, उसको समझ के रिस्पॉन्स देना होगा। रिटर्न कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है। हाँ, देयर इज एन एक्सेप्शन कि आप मान लो किसी के साथ चैटिंग कर रहे हो तो वहां पे वो बंदा आपसे उम्मीद कर सकता है कि आप इमीडिएट रिप्लाई करो, बट अदरवाइज पीपल आर नॉट इन हरी। यू, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया वो प्रपोजल वाला, तो मैंने प्रपोजल बना के ईमेल भी किया। अब वो भाई साहब कुछ मीटिंग में व्यस्त थे, मैंने उनको मैसेज भी किया कि सर आई हैव ऑलरेडी ईमेल्ड यू द प्रपोजल एज डिस्कस यस्टरडे, आई हैव ऑलरेडी ईमेल्ड यू द प्रपोजल ऑन कम्युनिकेशन ट्रेनिंग फॉर योर एम्प्लॉइज। ये सर ओके। अब ओके वाला मैसेज आया, उसको 4 घंटे हो गए, मैंने अपना इनबॉक्स चेक किया, कोई रिप्लाई नहीं है। और 3-4 घंटे निकल गए, वापस मैंने इनबॉक्स चेक किया, कोई रिप्लाई नहीं। कहने का मतलब ये है, हो सकता है कि सामने वाले भाई साहब कहीं पे बिजी हो, जैसे बताया मीटिंग में थे, फिर हो सकता है कोई और काम आ गया हो, but he has enough time to read my message, to understand it, to think what to reply and then to actually draft a reply. सामने वाले बंदे के पास डी कोडिंग के लिए और रिप्लाई करने के लिए टाइम रहेगा, जो कि ओरल कम्युनिकेशन में मुश्किल होता है। बंदा बोलेगा कि नहीं आप मुझे अभी बताओ, तो क्या करोगे? रिटर्न में कम से कम हमारे पास स्कोप रहता है, टाइम रहता है। तीसरा एडवांटेज है कि रिटर्न कम्युनिकेशन इज suitable फॉर लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स मैसेज। देखा, देखिए आप अपनी बिजनेस कम्युनिकेशन की बुक अगर आपके पास पड़ी ना, उसको देख लीजिए, कितनी मोटी बुक है, कितनी वजनदार बुक है, कितने सारे पन्ने हैं, कितने सारे चैप्टर्स हैं, और हर एक चैप्टर में कितना सारा मसाला, कितना सारा कंटेंट्स है। अब ये सारी चीजें मान लो इंस्टीट्यूट आपको ऐसे ही ऑडियो फाइल में भेज देती है, जहां पे कोई भाई साहब बक 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 करके आपको कुछ सुना देते हैं, पूरा पूरे का पूरा चीज, तो आप कितना समझ पाओगे? पर ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, जिसमें से काफी सारा इंफॉर्मेशन कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार हम बोल देंगे तो सामने वाला मेरा बच्चा समझ नहीं पाएगा। तो उन्होंने पूरा प्रिंट करके दिया, उसको डिजिटल फॉर्म में दिया, ताकि आप जब भी टाइम हो अपने हिसाब से उसको पढ़ सको, एक बार नहीं 10 बार 20 बार पढ़ सको, समझ सको, because it contains long as well as complicated message. And one big advantage of written communication is that we can maintain a permanent record of it. आपने ईमेल भेजा या लेटर भेजा, मैं उसका कॉपी करके उसको प्रिजर्व कर सकता हूं ना।
कंप्यूटर सिस्टम में स्कैन करके भी रख सकता हूं. What I'm trying to say is, if somebody sends you a message, can you save it? You can save a message written by somebody in your Android phone, in your laptop, or any other medium. So उसे संभाल कर रखना हमारे लिए पॉसिबल है. और मान लो कल जाके कुछ दिक्कत आती है, तो वो जो कम्युनिकेशन है, अ पीस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, यू कैन प्रेजेंट इट एज अ record also, as a proof evidence also. टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारे एडवांटेजेस दिए हैं. कोई भी बंदा लिख कर या टाइप कर कर हमें कोई भी मैसेज भेजता है, हम इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. मतलब किसी ना किसी तरीके से हम उसका एक रिकॉर्ड रख सकते हैं और उसको हम कहीं ना कहीं पे संभाल के मेंटेन कर सकते हैं. You can take a backup or a copy of a message, a written message by somebody, on a hard disk drive, external hard disk drive, and you can preserve it for a longer period of time, and in future if you need to refer to it, you can have it with you. सो रिटन कम्युनिकेशन का ये एडवांटेज है जो कि ओरल कम्युनिकेशन में काफी मुश्किल है. एक और चीज है, अकाउंटेबिलिटी कैन बी असाइन. इसका मतलब ये होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कंपनी. मान लो ये कंपनी में किसी एम्प्लॉई ने किसी और एम्प्लॉई को कुछ ऑफेंसिव मैसेज भेजा, कुछ नेगेटिव मैसेज भेजा, तो जो भी बंदे ने नेगेटिव मैसेज भेजा होगा हम उसे पकड़ सकते हैं, क्योंकि वी कैन फाइंड आउट हु डिड इट. हम आगे पढ़ेंगे कि किसी भी कंपनी में किस तरह से कम्युनिकेशन होता है, वेरियस फ्लोज ऑफ कम्युनिकेशन. There you will learn that there are ideally 4 different ways of communication within an organization, and it is done in a very systematic manner so that you can find out कि किसने कहाँ पे क्या गलती किया. सो रिटन कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज वो भी है कि हम यहाँ पे बंदे को पकड़ सकते हैं कि हाँ इसने लिखा था या उसने मैसेज किया था. ओरल कम्युनिकेशन में मुश्किल है क्योंकि कोई भी बंदा मुंह कर सकता है कि नहीं मैंने तो नहीं किया, नहीं मैं तो नहीं बोला. हाउ विल यू गेट अ होल्ड ऑफ दैट पर्सन? अब बात करेंगे रिटन कम्युनिकेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस की, जो कि इस तरह से. सबसे पहला है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली. See, when you speak, you don't have much time to think. So whatever comes in your mind, whatever your knowledge, whatever experience or information you have, you can just speak it out. You don't think much. And probably you don't even have time to encode in detail. But what in case of writing? You have a lot of time, at least 5-10 minutes, so that you can plan your message, you can prepare, you can make a note. So all this is going to consume some time. So as compared to oral communication, written communication में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है. आप मैसेज टाइप भी करोगे ना तो दैट विल टेक सम टाइम, एंड इफ इज एन ईमेल और इफ यू आर मेकिंग अ प्रपोजल और अ रिपोर्ट, दैट इज गोइंग टू कंज्यूम अ हेल लॉट ऑफ टाइम. That's costly because you need to use some instruments. I may need to use my Android phone for sending a message to somebody. I may need to use my laptop for writing an email to somebody. So cost of that instrument that I'm using, plus electricity charges, plus internet charges, and if suppose I'm writing it on a piece of paper, then stationery charges, courier charges. So in some manner, written communication is expensive, costly. Second, something that we had considered as an advantage in case of oral communication, written communication में वो negative चीज हो जाएगी, because here it's very difficult to get immediate feedback and clarification. Still there is a possibility. If the other person is online and you are chatting with him, or if the other person is relatively free and you are sending a message,
then probably you can seek clarification or you can ask for a feedback, and you can get it instantly also. अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। सी मैंने किसी कंपनी को एक ईमेल भेजा उनके प्रोडक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पाने के लिए। ना व्हाट इज द गारंटी के, देखिए ईमेल में तो यूजुअली टाइम नहीं लगता, मैंने ईमेल ड्राफ्ट करके ईमेल सेंड किया तो यूजुअली 5-10 मिनट्स में लेट उसको मिल ही जाएगा। बट व्हाट इज द गारंटी दैट द पर्सन रीड्स विद इन 10 मिनट्स एंड रिप्लाइज विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स? एब्सोल्युटली नो। हो सकता है कि वो बंदा जिसको मैंने ईमेल भेजा वो आज मेरा ईमेल देखे ही नहीं, उसके पास टाइम ही ना हो, या हो सकता है किसी गलत फोल्डर में मेरा ईमेल सेव हो गया हो जो उसे नहीं पता हो, तो उसको काफी अरसे तक पता भी ना चले। हो सकता है वो किसी काम से बाहर निकला और वापस ऑफिस में नहीं आया हो और इन बिटवीन उसने अपने मेल्स चेक नहीं किए होंगे फोन पर, किसी भी वजह से ये क्वाइट पॉसिबल कि वो कल मेरा ईमेल पढ़ेगा। अब हो सकता है कि ही मे नॉट बी द सोल अथॉरिटी, तो मेरे ईमेल का रिप्लाई करने के टाइम पे ही आल्सो नीड्स टू गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवन एल्स एंड दैट समवन एल्स मे नॉट बी अवेलेबल, सो और एक दिन निकल जाएगा। तो आज मैंने ईमेल भेजा अभी 3 बजे दोपहर में, वो बंदे ने पढ़ा कल सुबह 11 बजे। अब मैंने जो चीजें जो इंफॉर्मेशन मांगी थी उसका रिप्लाई उसके पास भी नहीं था, जो उसे लेनी थी किसी और बंदे से। अब वो बंदा आया परसों दोपहर में 2 बजे, फिर ये भाई के साथ उसकी बात हुई 3 बजे। अब उस दिन का उसका काफी काम पेंडिंग था, उसने बोला सर मैं नेक्स्ट डे आपको बताऊंगा, तो उसके बाद के दिन को उसने वो इंफॉर्मेशन भेजी। अब उस दिन ये बंदा बिजी था तो उसने उसके दूसरे दिन वो इंफॉर्मेशन मुझे भेजी, मतलब मैंने तो ईमेल आज भेजा पर उसका रिप्लाई मुझे मिला 4 दिन के बाद। सो कहां पे इमीडिएट फीडबैक है, कहां पे क्लेरिफिकेशन है? इट्स डिफिकल्ट। और अगर इमीडिएट फीडबैक या क्लेरिफिकेशन चाहिए तो देन यू नीड टू रिफर टू ओरल चैनल, ये केस में फोन पर बात हो सकती है। तीसरा एक डिसएडवांटेज है रिटर्न कम्युनिकेशन ना, कि इट लेक्स पर्सनल टच एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। यूजुअली मोस्ट ऑफ द ईमेल्स आर confidential. What I mean to say is nobody can access your email without your permission or without the valid password. And normally we don't share our password with anybody. देखिए मैं आपसे मिलके आपसे जिस तरह से बात करता हूं, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे से बात करना, वो वाला जो फीलिंग है ना कुछ और ही है। किसकी कंपैरिजन में? मेरे मैसेज की कंपैरिजन में। मैं आपको मिलके पर्सनली आपको हैप्पी बर्थडे विश करूंगा, हाथ मिलाऊंगा, और इफ वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स वी मे हग, तो वो जो फील आएगी ना वो फील मेरे हैप्पी बर्थडे के व्हाट्सएप मैसेज में कभी नहीं आएगी। So that is a matter of personal touch, which is actually a part of oral communication, which you always miss in written communication. और मान लो कि कहीं पे हमसे कुछ गलती हो गई लिखने में भी, it's quite possible. Lot of people make lot of mistakes every day while writing an email or while preparing a report, and they cannot correct because they don't know, they are not aware कि मेरे से कोई गलती हो गई है। अब ये गलती कब वो सुधार पाएंगे ना, जब सामने वाले का कोई फीडबैक आएगा, रिप्लाई आएगा तब, या फिर जब वो बंदा फ्री होगा वो अपना मेल पढ़ेगा, सेंट मेल्स फोल्डर में जाके मेल ओपन करके पढ़ेगा, देन ही विल कम टू नो माय गुडनेस मेरे से गलती हो गई। नाउ व्हाट टू डू? ही मे ट्राई टू टेक अ करेक्टिव एक्शन बट दैट टेक्स टाइम, सो करेक्शन में भी डिले हो जाएगा। और दूसरा एक डिसएडवांटेज है कि यू कैन नॉट यूज बॉडी लैंग्वेज व्हेन यू आर communicating in a written mode, and even if you use it's of no use because there is nobody to see it. मुझे कोई सेंसिटिव मैसेज किसी को बताना है, कम्युनिकेट करना है, तो मैं क्या करूंगा? आई विल प्रिफर फेस टू फेस मीटिंग विद दैट पर्सन, and I will go with oral communication because now I can use my facial expressions, eye contact, gestures, voice to convey that message more effectively and get the desired response. Can I do it through words and written communication? No.
So I cannot use body language. That is the biggest disadvantage of written communication. Now we'll move to the next means of communication, which is visual communication. देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली विजुअल कम्युनिकेशन जहां पे वर्ड्स यूज नहीं होते, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. पर यहाँ पे क्योंकि वो चीज आपके सिलेबस में है और हमको सिलेबस में रह के ही पढ़ना है, तो एक वो रीजन से, और दूसरा एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि विजुअल कम्युनिकेशन के साथ अगर वर्ड्स को भी यूज किया है, so now you can consider it as a verbal and a non-verbal communication, actually a combination of both. So we'll have a look at visual communication. What is a visual communication? So communication through words or pictures or combination of both is called visual communication. And what are the examples? Tables, स्कूल लेवल से हमने पढ़ा, चार्ट्स, ग्राफ्स, मैप्स, स्लाइड्स, मॉडल्स, बैनर्स, होर्डिंग्स, साइन बोर्ड्स, notice boards. These all are the examples of visual aids. But most of these visual aids don't only contain pictures, they also contain words. So we have considered them as a part of verbal communication here. ये जो सारी चीजें मैं अभी बोला, पोस्टर ले लो, फ्रेम किया हुआ पिक्चर ले लो, बैनर्स ले लो, होर्डिंग्स ले लो, चार्ट ले लो, ग्राफ ले लो, टेबल, वो फर्नीचर वाला नहीं, वो मैथ्स में जो हम यूज करते हैं ना, वो वाला टेबल, पीपीटी, स्लाइड्स ले लो, मैप्स ले लो, नक्शा जिसको हम बोलते हैं, ये सारी चीजों में हमें कुछ ड्रॉ किया हुआ मिलता है. फोटोग्राफ्स ले लो, कुछ हम देखते हैं और वो देखकर हमें कोई ना कोई मैसेज मिलता है. You look at an abstract painting, it's a piece of art, and if you find something in that picture, that is a visual communication. Now we'll discuss about the advantages of visual communication. The very first advantage is they are very eye catchy. Eye catchy माने attractive, आकर्षक. And they complement the main message. हम जो चीज बोलकर या लिखकर बताते हैं उसके साथ अगर विजुअल्स भी हैं कॉम्बिनेशन में, तो हमारी बात का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा हो जाता है. हम जो कहना चाहते हैं उसको हम बहुत और अच्छी तरीके से पेश कर सकते हैं. સો ઇટ ઇઝ અ કોમ્પ્લિમેન્ટરી ટુ મેઇન મેસેજ. આપણે જે બોલીએ કે લખીએ છીએ એ શબ્દોને પૂરક તરીકે, એના સપોર્ટ તરીકે વિઝ્યુઅલ્સને વાપરી શકીએ છીએ. So if you work in a company, you'll come across a lot of seminars, workshops, training, events and presentations where the speaker is using a number of PowerPoint slides and short videos so that he can communicate, he can explain what is trying to convey in a more effective and interesting manner. Second advantage of visual communication is that they can be easily remembered for long period. If I tell you something, you may forget within couple of minutes. But if I show you something, you may remember it for long. अगर मैंने बोल के आपको कुछ कम्युनिकेट किया तो आप कुछ ही घंटों में या मिनटों में भूल जाओगे. क्वाइट पॉसिबल, बहुत ही नेचुरल है. पर मैंने आपको कोई चीज बताई, जैसे मैंने कोई अच्छा सा बढ़िया सा पिक्चर दिखाया, फोटो दिखाया, कोई मूवी का क्लिपिंग दिखाया, तो वो चीज आपके दिमाग में लंबे अरसे तक रहती है. और अगर वो चीज को वापस अगर कभी हम रिफर करते हैं तो यूल टेल मी, हेमंत सर आपने वो मूवी दिखाया था ना, चक दे इंडिया का, वो चक दे मूवी जो था उसका एक सीन आपने दिखाया था. यू इमीडिएटली बी एबल टू रिकॉल. इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि इट्स एक्सपेंसिव, महंगा है. Now we'll move to the next topic, which is audio visual communication. So this is a combination of two things, something that we listen, and something that we can see. But it's a combination of two things.
Movies are the best examples of audio visual communication because you don't only see the actors on the screen, you also hear what they speak. So communication through audio and visuals is known as audio visual communication. In short, we can call it AV communication. What are the examples? Practically speaking, online learning sessions. See, if you have experienced Zoom sessions of our institute, that is a pure example of audio video communication because you can see Raju sir or Mukesh sir, and you can also talk with them if they have not muted you for some reason. You can raise your queries, you can raise your questions, and they can on the spot answer your queries. They can solve your problems, they can solve your doubts. Video conferencing, you might have seen about a lot of online working from home concept due to this COVID-19 situation. Not only work, even training is being imparted with this webinars and online sessions. So that is again an example of video conferencing, which is an example of AV communication. Whenever you make a presentation with the use of PowerPoint and slides, that is also an example of AV communication because you are speaking, so they are listening, and you are showing something which they are watching. So it's a combination of hearing and seeing. What are the advantages? The first advantages in AV communication is that they stimulate two sensory organs, your eyes and your ears. So both the senses, sight, seeing and hearing, gets stimulated. It has got a wider reach. You can reach up to more number of people with the help of audio visual aids. And third, it can be easily remembered for long because it's a combination of audio and video. But the disadvantages, it is again costly. Now we'll discuss about various factors that affect the choice of means. Suppose I want to communicate, I have to communicate an important message to someone. And I need to make sure that I convey the message in the best possible manner. And I also expect that the receiver not only listens to my message, but he properly, in the right sense, he understands my message and responds me properly. To make it happen, I need to decide how should I communicate my message. Should it be verbal communication or non-verbal communication or a combination of both? Should it be oral communication or written communication or visual communication or audio visual communication or a combination of all or combination of some of this? Even when I would like to go with say non-verbal communication, which elements of non-verbal communication should I use? Should I use only body language along with the words? Or should I use my voice? Should I modulate and project my voice as well? So there are few factors which help you decide which will be the right mode or means of communication in this particular situation. फ्रेंड्स, कई बार ये होता है ना कि हमें कोई इंपॉर्टेंट मैसेज किसी बंदे को कम्युनिकेट करना है, पर हम ये चाहते हैं कि हम वो मैसेज अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करें, इस तरीके से कम्युनिकेट करें ताकि सामने वाले बंदे को कोई कंफ्यूजन ना हो, हम जो कुछ भी कहना चाहते हैं, हमने जो कुछ भी कहा वो उसकी समझ में आ जाए और वो हमें सही तरीके से रिस्पॉन्ड भी करे, फीडबैक दे। तो इसके लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से, कौन से मोड से या कौन से मीन्स से कम्युनिकेट करेंगे। हम वर्बल कम्युनिकेशन सिलेक्ट करेंगे या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे या दोनों ही कम्युनिकेशन को साथ में यूज करेंगे। अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में सोचते हैं तो हम क्या ओरल कम्युनिकेशन करेंगे या रिटन कम्युनिकेशन करना चाहिए, या सिर्फ विजुअल कम्युनिकेशन से बात हो पाएगी, या फिर हम कॉम्बिनेशन करेंगे कि वर्ड्स के साथ साथ या ओरल कम्युनिकेशन के साथ साथ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन को कंबाइन करेंगे।
अगर आपने सोचा कि ओरल कम्युनिकेशन के साथ मुझे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इंक्लूड करना है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी क्या करना है, आप क्या पूरा बॉडी लैंग्वेज यूज करोगे या उसके साथ अपने वॉइस को भी प्रोजेक्ट करना चाहोगे? सो ये डिसीजन कैसे लेंगे? तो कुछ फैक्टर्स है जिसके बिना पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इन अ गिवन सिचुएशन हम कौन से मोड से कम्युनिकेट करें। शुड इट बी वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? Should it be oral communication, written communication, visual communication, or audio visual communication? Should I use my voice and body language along with it or not? So let's have a look at these factors. The very first factors is organization size and policy. If this is a workplace related situation where you need to decide a mode or means, then the very first factor that affects your decision is size and policies of your organization. Usually, small companies prefer oral communication, but big companies where there are a number of employees working together, they might go with written communication. You should also understand and refer to the communication policy of your organization. पहला जो फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन साइज एंड पॉलिसी. अगर आप किसी छोटी कंपनी में काम कर रहे हो जहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम है, तो ज्यादातर केस में ओरल कम्युनिकेशन सही रहेगा. अगर आप किसी बड़ी एमएनसी में काम कर रहे हो जहां पे बहुत सारे एम्प्लॉइज है, तो वहां पे हो सकता है कि ओरल कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिव न हो, तो इन दैट केस वहां पे रिटन कम्युनिकेशन यूज करना पड़ेगा. हर एक कंपनी का खुद का कम्युनिकेशन पॉलिसी भी होता है कि एम्प्लॉइज को कैसे कम्युनिकेशन करना है, किस तरह से कम्युनिकेशन करना है, इससे कुछ रूल्स बनाए हुए होते हैं, तो आपको उसको भी रेफर करना पड़ेगा. दूसरा जो फैक्टर है दैट यू नीड टू कंसिडर एंड इट इज कॉस्ट. यू नीड टू कंसिडर द कॉस्ट वर्सेस द रिजल्ट. अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किसी बंदे को कम्युनिकेट करनी है, तो आपको दो चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा कि ये कम्युनिकेशन अगर मैं किसी पर्टिकुलर मीडियम से करता हूं या किसी पर्टिकुलर मीन्स या मोड को यूज करके करता हूं, तो इसका कॉस्ट कितना लगेगा, टेंटेटिव कॉस्ट, और इसके सामने मुझे रिस्पॉन्स क्या मिलना है या मुझे क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और वो रिजल्ट आई नीड जस्ट नीड टू कंपेयर द कॉस्ट एंड द पॉसिबल रिजल्ट. I need to consider the effectiveness of that mode and the feedback that I'm expecting. The third factor is nature of message. आपने जो मैसेज देना है वो किस तरह का है, वो बड़ा मैसेज है, छोटा मैसेज है, इजी टू अंडरस्टैंड समझने में आसान हो वैसा मैसेज है, या कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल मैसेज है जिसको समझने के 2-3 बार सुनना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा. You also need to think how important your message is and how urgent it is. Is it a confidential message or not? ये भी आपको सोचना पड़ेगा. Do I want to communicate this message face to face in person, or I just want to hand deliver a message, or do I need to courier it? ये सारे फैक्टर्स हम कंसिडर करेंगे बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद द फैक्टर कॉल्ड नेचर ऑफ मैसेज. The fourth factor which can affect your decision of deciding the modes of communication is distance. How far the receiver is. Receiver मेरे से कितना दूर है, physical distance you need to think about, and accordingly you need to go with the mode. And the final one is resources. Which resources are available? Do I have a telephone facility in my company? Do we have a working internet connection? Do we have a fax machine? Because see, suppose you decide to communicate a message with the help of fax so that it reaches the target receiver soon. You must have a fax machine installed in your company, and you must have an authority to use it, and you must know how to use it, or you should at least
you should be able to access a person who can operate it. तो रिसोर्सेज भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि अगर आप कोई पर्टिकुलर मीडियम यूज करना चाहते हो मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो मीडियम भी तो अवेलेबल होना चाहिए ना। अब एक नया सा